Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I'm here with a master class on listening module. So guys, I know I have been receiving comments because reading ke upar there are so many videos now. I have provided you with so many sessions and now students are looking forward to listening module. So I'm here to help you with listening module. I have already created one master class on writing module. So this is the second master class of mine and this class is on listening module. I can assure you one thing, after watching this session, you can actually get 8 plus in IELTS listening easily after practicing 4 to 5 listenings only. So just follow this, listen to me in detail and do not write anything, but dhyan se suno. I'll suggest you to do this only. Coming to the next one guys, अब बेसिकली क्या है कि ये जो मास्टर क्लास की हम बात कर रहे हैं आइल्स लिसनिंग में, एवरीथिंग इज टोल्ड टू यू इन डिटेल की लिसनिंग में क्वेश्चन टाइप्स, हाउ डू यू नीड टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप, what exactly you need to do first, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे आंसर करना है, कैसे ध्यान से सुनना है. I'll be explaining every single thing in detail. So just watch this session and I hope you'll get benefited. Okay, so for those who are watching my session for the first time, if you really like my session, then I'll recommend you to subscribe to my channel, and if you do not like, I'll be ready for an opinion as well. So please give your opinion at the end. I'll actually try to improve myself. Thank you guys. So let's get started guys. मास्टर क्लास आइल्स लिसनिंग के ऊपर है. लिसनिंग में होता क्या है, as you already know, those who have been watching me regularly and active for a long time, so they know that I follow only Cambridge books क्योंकि authentic listening भी वहीं पे ही है, tips and techniques and strategies भी proper आपको Cambridge में ही मिलती हैं. So guys, according to Cambridge, देखो कोई भी आप अगर notice करोगे, कभी भी listening की audio देखोगे, first thing is in listening we have 4 parts. Okay, so we have part 1, part 2, part 3 and part 4. So here we have 4 parts. अब now what I suggest guys, whenever we are doing listening, so सबसे पहले audio देखो. Usually तो Cambridge से ही practice करो. If you are unable to practice through Cambridge books, I'll suggest you, if you're unable to practice through Cambridge books, I'll suggest you to see the length of the audio. If the length is less than 29 minutes, so उन्होंने 1x, 1.5 और 1.75 कर रखी है speed. That's not good. क्योंकि जो एक्चुअल एग्जाम में आपकी लिसनिंग आनी है, दैट विल नॉट बी ऑफ लेस देन 29 मिनट्स. यूजुअली 29 to 34 मिनट्स होती है आपकी लिसनिंग. सो टेक केयर ऑफ दिस. 29 मिनट्स है, just go for that. Another thing, there are certain other things which I'll be explaining you. ठीक है, सो ये 29 मिनट्स वाली ऑडियो. अर्लियर लिसनिंग में क्या होता था कि दे हैड सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, बट नाउ वी हैव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. आपको जरूर लग रहा होगा दीज आर दी थिंग्स मैम वी एक्चुअली नो, बट यू विल एक्चुअली गेट टू नो आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन कि ये तो बहुत कुछ नहीं पता था. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज पार्ट 1. पार्ट 1 में यूजुअली अगर आपने कभी भी नोटिस करे हो तो कन्वर्सेशन होती है. ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 to 3 persons. ठीक है, यूजुअली यहाँ पे 2 persons में होती है कॉन्वर्सेशन. ठीक है, देन वी हैव इन दिस पार्ट यूजुअली क्या होता है कि कोई एग्जीक्यूटिव, सम एग्जीक्यूटिव इज कॉलिंग यू, और किसी कंपनी से आपके पास कॉल है किसी एम्प्लॉय का, एंड यू आर द कस्टमर. सो अ कस्टमर एंड अ वर्कर, कस्टमर एंड एन एग्जीक्यूटिव. यूजुअली ऐसा होता है कि आप किसी एग्जीक्यूटिव से फॉर्म फिल कर रहे हो या कुछ करवा रहे हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू सच. ठीक है, सो नाउ वी शुड नो 2 पर्सन्स की बात हो रही है. वी शुड ऑलवेज नो कि 2 पर्सन्स में से हु ऑल आर देयर. ओके, सो लेट्स सी वी आर हियरिंग वन मेल वॉइस एंड वन फीमेल. सो वी शुड नो जो मेल है वो कस्टमर है या फीमेल कस्टमर है. So let's say male voice is of customer and female's voice is of a representative or an executive. So we should write it down. Even the names, अगर कस्टमर का नेम पता है वो लिखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार ऐसा ही होता है पार्ट 1 में. they'll ask you to fill the form. So form filling वाला होता है पार्ट 1. you just need to take care of this. ठीक है, now in part 2 what happens, in part 2 we usually get a radio broadcast. अब radio broadcast में what happens, there is only one speaker.
There is only one speaker in radio broadcast. ओके यस अब इसमें क्या है वन स्पीकर है दैट पर्सन विल बी गिविंग यू स्पीच विल बी टेलिंग यू वन थिंग और द अदर यू जस्ट नीड टू लिसन केयरफुली यूजुअली मैप पार्ट 2 में आएगा अगर पार्ट 2 में मैप आता है तो वो ऐसा बता रहे होते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं सो वहां पे दिस इज व्हाट दे एक्चुअली डू सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस हमें बेसिकली क्या होता है पार्ट 1 में एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 4 कंपैरेटिवली इजी होते हैं ओके whereas part 2 and part 3 आपको टफ लगेंगे ठीक है सो पार्ट 2 में ओनली वन स्पीकर usually a radio broadcast जिसमें they'll be giving you speech they'll be telling you one thing or the other about the topic but in part 3 again we have conversation and it is trickier than part 1 definitely क्योंकि यहाँ पे conversation is between 2 to 3 persons usually 3 होते हैं अब why so when there are 3 persons so what happens here अगर मैं इस चीज की बात करूं तो usually one lecturer ठीक है then we have 2 students so let's say one male student one female student and we should know their names as well क्योंकि जब आपको वो conversation आप usually उस time पे you are just underlining the keywords and that time what happens they are giving you introduction that he is the lecturer and now he'll be talking to 2 students named Julie and Thomas so this is what they actually do but हम ध्यान नहीं दे रहे होते that's very important part when they are introducing the speaker to you when they are introducing the person who is speaking in the audio to you so that helps you a lot in getting the answers okay so इसीलिए make it a point whenever they are giving introduction बहुत ध्यान से सुनो so one lecturer ठीक है one male student one female student so let's say male का name है Thomas female Julie ठीक है एंड लेक्चरर जो है उनका नेम है मिस्टर विलियम्स अब ये काफी ट्रिकी है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैचअप्स यूजुअली इसी पार्ट में होते हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कमिंग टू पार्ट 4 गाइज यहाँ पे पार्ट 4 में कुछ भी नहीं है सिंपल सा होता है पार्ट 4 यूजुअली सम लेक्चर सो एक लेक्चर होता है लॉन्ग स्पीच होती है सो व्हाट इज दिस लॉन्ग स्पीच को क्या बोलते हैं मोनोलॉग सो यूजुअली अ मोनोलॉग और ये कौन देते हैं गिवन बाय लेक्चरर ठीक है जरूरी नहीं है लेक्चरर हो प्रिंसिपल डीन सीईओ साइंटिस्ट सो दे यूजुअली गिव लेक्चर ठीक है मोनोलॉग लॉन्ग स्पीच देते हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे यूजुअली वो जो टॉपिक होता है दैट्स ऑफ एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में होता है वो टॉपिक एंड उसके ऊपर आपने आंसर्स करने होते हैं यूजुअली 1 वर्ड और 2 वर्ड आंसर होते हैं एंड इट्स कंपैरेटिवली इजी सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हियर आई विल सजेस्ट वन थिंग गाइस यूजुअली पार्ट 1 एंड पार्ट 4 इजी है ठीक है पार्ट 1 एंड पार्ट 4 इज कंपैरेटिवली इजी ठीक है सो व्हाट आई सजेस्ट कि हमेशा दे गिव यू 30 to 45 seconds टू गो थ्रू द क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ दे यूजुअली गिव यू हमेशा आप नोटिस करोगे 30 to 45 seconds मिलते हैं आपको टू रीड द क्वेश्चंस टू रीड द क्वेश्चंस अब आपने यहाँ पे क्या करना है when they are giving you these 30 to 45 seconds you definitely need to read the questions and underline the keywords ठीक है so वही करना है but at the end also they give you time to check the answers so again 30 to 45 seconds मिलते हैं पर वो किस लिए मिलते हैं to check the answer अब ये जो टाइम है I'll not recommend you to check the answers in listening except matchups बाकी के सारे क्वेश्चंस में लिखने की जरूरत नहीं आप ऑलरेडी आंसर्स लिख रहे होते हो साथ के साथ सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम डू नॉट वेस्ट दिस टाइम इन चेकिंग द आंसर इंस्टेड devote this time to reading the next set of questions it will help you a lot okay so when you'll be reading next set of questions you will have a clear vision you'll underline the keywords as well and those underlining the keywords thing will help you a lot in identifying the correct answers so I'll suggest you to do this here अब देखो in part 1 and part 4
the answers are easy. Okay, we actually get the questions are easy and we actually get the answers easily. So in this case I'll just recommend you to read and write the answers, बस simple. ठीक है, आपको इसमें बाद में चेकिंग की यूजुअली बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी. सो पार्ट 1 के बाद जो चेकिंग का टाइम है, स्पेंड दैट टाइम इन रीडिंग क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 2 ओनली. ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 4 इजी है. क्यों इजी है? क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 4 में यूजुअली क्वेश्चंस कौन से होते हैं? फिल-अप्स, summary completion at times, short question answers. ठीक है, इसके अलावा आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए, फिलअप्स हो गए, समरी कंप्लीशन हो गई. नेक्स्ट थिंग क्या होगी यहाँ पे? नेक्स्ट थिंग विल बी यूजुअली यहाँ आ जाता है कोई फॉर्म आ गया कि कोई फॉर्म या एप्लीकेशन फिल करनी है आपने. ओके, सो फॉर्म फिल कर दो. बस दिस इज व्हाट दे एक्चुअली गिव. Part 1 and Part 4 में questions like such are given. I always recommend you to read the instructions as well, क्योंकि major number of words आपको instructions के through ही पता चलना है कि 2 words answer करना है, 3 word answer करना है. So take care of this. ठीक है, अब 1 word भी हो सकता है. We just need to Part 1 and Part 4 आपका इतना strong होना चाहिए कि इसमें आपके 20 out of 20 होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. आई नो आपको पार्ट 4 ट्रिकी लगता है क्योंकि उसमें लेंदी होता है, दैट्स लेंदी एंड द स्पीकर इज स्पीकिंग एट फास्ट पेस. सो यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन दे स्पीक एट फास्ट पेस, यू आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड. सो ड्यूरिंग दैट टाइम देखो ऐसा लगेगा, बट दैट्स ओनली द प्रैक्टिस. आपने क्या करना है, व्हेन दे गिव यू टाइम टू रीड द क्वेश्चंस, यू विल नॉट जस्ट रीड द क्वेश्चंस, यू विल आल्सो अंडरलाइन द कीवर्ड्स. अब कीवर्ड्स कौन से होते हैं यहाँ पे, that you should know. When we are talking about keywords, keywords में होते हैं noun और some proper noun, some negative word. अगर कोई negative word है, not, no, did not, so take care of that. Noun, proper noun, then year or date. कोई भी date आ गई, कोई number आ गया, specifically कोई date या कोई number आ गया, circle that. एंड लास्ट इज कोई वर्ब को सर्कल करो कि क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन. सो जस्ट सर्कल दीज, यू नीड नॉट टू सर्कल एनी अदर रैंडम इंफॉर्मेशन, जस्ट सर्कल दीज कीवर्ड्स. इसी के थ्रू आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 4 इजीली मिल जाना है. अब यूजुअली पार्ट 4 में हमें प्रॉपर नाउन को सर्कल करना ही पड़ता है. ओके, सो इन पार्ट 4 वी यूजुअली सर्कल प्रॉपर नाउन. नेगेटिव वर्ड्स का भी ध्यान देना पड़ता है, बट वो पार्ट 4 से ज्यादा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में. ईयर, डेट एंड नंबर का जरूर ध्यान दो. यू शुड नो व्हाट द एग्जामिनर इज सेइंग. सो आपकी यू शुड एक्चुअली ड्रैग योर पेंसिल. ठीक है, आपकी पेंसिल, यू शुड मूव योर पेंसिल अलोंग विद द ऑडियो. सो ऑडियो के ही सेम पाथ पे पेंसिल मूव होनी चाहिए. कि अगर ऑडियो में वो एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि 1988 इन 1988 दिस हैपेंड, सो 1988 पे ही पेंसिल होनी चाहिए. इससे आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स. सो जस्ट फोकस ऑन दिस. ठीक है, आई बिलीव इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया है. अभी फिलअप, समरी कंप्लीशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. डेफिनेटली मैं इस वीडियो के अंडर आपको क्या करूंगी, आई विल बी शेयरिंग दी डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको लिंक ऐड कर दूंगी फिलअप्स के, समरी कंप्लीशन के, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के. उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा. जिस पार्ट में प्रॉब्लम है, गो थ्रू दैट ओनली. Okay, and do let me know as well in the comment section if you want me to create video on some other topic, because whatever topics I'm receiving, I'm going to create video on one topic or the other. ठीक है, so this is about part 1 and part 4. But जो हमारे tricky part है, that's part 2 and part 3. हमें mainly problem part 2 and part 3 में आती है. So guys, अभी मैं आपको पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बताने वाली हूँ. बट बिफोर टेलिंग यू दैट, देयर इज वन थिंग कि पार्ट 1 एंड पार्ट 4 में यूजुअली जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सीक्वेंस में ही आंसर मिलेंगे. लिसनिंग में मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर इन सीक्वेंस. ओके, सो ज्यादा देखो सीक्वेंस में तो होना ही है, दैट्स फॉर श्योर. कि अगर आप नंबरिंग वाइज देख रहे हो, देयर आर टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस इन लिसनिंग. ओके, सो वो जो 40 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ऑलवेज इन सीक्वेंस होंगे. कि फर्स्टली दे विल बी आंसरिंग फर्स्ट क्वेश्चन, देन सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो यस, दे आर ऑलवेज इन सीक्वेंस. बट अब वो जो सीक्वेंस है ऑप्शंस के केस में चेंज होता है. आई विल टेल यू दैट एज वेल. ठीक है, जैसे कि अब देखो पार्ट 1 एंड पार्ट 4 में जो क्वेश्चंस है इजीली आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे. फिल इन द ब्लैंक, समरी कंप्लीशन
always in sequence. But in part 2 and part 3 we have different question types. And वो question types कौन से हैं? In part 2 we get MCQs, ठीक है, matchups, part 2 and part 3 दोनों में matchups, ठीक है, map, ठीक है. Usually these three types of questions are there: MCQs, matchups, maps. ठीक है. So what exactly do we need to do here? जब भी देखो MCQs है, matchups हैं, मैं एक बार पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ. व्हेन इट कम्स टू मैचअप्स, यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं होगा, हो सकता है उन्होंने आगे पीछे आंसर दिया है. लेट्स से मैप की बात करें, क्वेश्चन जरूर सीक्वेंस में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होगा कि सीक्वेंस में होता है, बट कभी कभार होता है कि सीक्वेंस में ना हो. जैसे मैचअप्स हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि फर्स्ट का ही आंसर पहले करना, कभी चेंज हो जाता है, बट दैट्स वेरी रेयर. ओके, दैट्स एक्चुअली रेयर. बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो इन MCQs, पहले मैं MCQs ही बताती हूँ. इन MCQs we have the question followed by 3 options और 4 options. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जब हमें 30 to 45 सेकंड्स मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, वो तो हमें MCQs पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, बट पार्ट 1 के एंड में भी आपको टाइम मिलता है क्वेश्चंस चेक करने के लिए. सो यू यूटिलाइज द होल टाइम, ठीक है, पार्ट 1 वाला भी एंड वाला एंड पार्ट 2 बिगिनिंग वाला टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन. अब यहाँ पे आपने अंडरलाइन क्या करना है, ठीक है, द क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ. सो मेनली क्या अंडरलाइन करना है, इंटेरोगेटिव वर्ड. ठीक है. नेक्स्ट इसके अलावा आपने करना मेन इंफॉर्मेशन, नाउन, कि नाउन क्या है. अगर कोई नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड को अंडरलाइन करो एंड वर्ब. सो जस्ट फोकस ऑन दीज. देन कमिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शंस में उन्होंने वेरियस थिंग्स बताए, तो ऑप्शंस में 2 चीजों पे मेनली फोकस करना होता है, एडजेक्टिव एंड नाउन के ऊपर. अब बहुत ज्यादा ग्रामर हो गई, कंफ्यूज हो गए, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बेसिकली इज अ वर्ड टेलिंग यू समथिंग अबाउट नाउन. सो लेट्स से उन्होंने बोला है प्राइस, ठीक है, फ्लक्चुएशंस और फ्लक्चुएटिंग प्राइस, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग प्राइस. सो अब ये क्या है मेरा, दे आर टेलिंग यू समथिंग अबाउट प्राइस. प्राइस इज अ noun and fluctuating is an adjective. So when they are giving you some information about a noun, that's an adjective. और verb होता है when some work is being done, जैसे price, rise. अगर rise आ गया तो rise क्या हो गया, rise is a verb, fall is a verb, and noun होता है किसी भी person, place, animal, thing का name. ठीक है, so that's a noun. We need to take care of these. हमने यही keywords underline करने हैं. बट MCQs को करने की सबसे इजी ट्रिक क्या है, whenever you are doing MCQs, easiest ट्रिक क्या है MCQ करने की, वो ये है गाइस कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, यस, सो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेसिकली क्या होता है कि देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन. आपने क्या करना है, आपने सुनना तो ध्यान से है, वो ऑप्शंस रैंडम ऑर्डर में होते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि आंसर्स, क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में होंगे, बट ऑप्शंस रैंडम ऑर्डर में होते हैं, इसलिए एमसीक्यूज में ये प्रॉब्लम आती है. तो रैंडम ऑर्डर इन द सेंस, आप नोटिस करोगे कि 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंड आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो, फर्स्ट ऑप्शन मतलब ईदर ऑफ 3, ठीक है, वन ऑफ दीज 3 विल बी ऑपोजिट. सो ऑपोजिट इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है. एक इंफॉर्मेशन होगी जो कॉन्ट्राडिक्टिंग होगी, कि मतलब बात तो करी है उसके बारे में बट उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उसे. मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करा है, अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टिंग कनेक्टर्स यूज करे. कैसे कनेक्टर्स, हाउएवर, इंस्टेड, बट, ओके, हाउएवर, इंस्टेड, बट, व्हाइल, ओके, वेयरएज. सो दे विल बी यूजिंग वर्ड्स लाइक सच. आप इन वर्ड्स के लिए आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है. एंड थर्ड यूजुअली करेक्ट ऑप्शन होता है. अब वो करेक्ट का एक मेन ट्रिक तो है ना, वो ये है कि यूजुअली आंसर करेक्ट देने से पहले वो बहुत बार ऐसा होगा कि they'll use however. This was not the case. Instead, go for this. Rather than going for this, we went for this. We opted for this option. But, ठीक है, on the other hand, ठीक है, I do not think so. So they'll be using keywords like such. However, instead, rather than, but,
they are going to use this. कभी कभार ऐसा भी होता है, they say the more suitable one is. So what is happening here? They are giving you contradictory, ठीक है, they are giving you contrasting connectors. इन्हें हम contrasting connectors बोलते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि whether it's correct or not. यूजुअली ऐसा होता ही होता है, एक ऑपोजिट होगा ही होगा पक्का, दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है. चाहे पार्ट 1 में हल्की सी कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर होगी ना, फिर भी आप मैनेज कर लोगे, यू विल बी बैक टू द पेस. ओके, आपको यूजुअली क्वेश्चन मिल जाएगा, बट पार्ट 2 पार्ट 3 में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनो, एंड ट्राई टू गेस द आंसर्स एज वेल. जहां पे आपको लग रहा है कि दिस कैन बी द आंसर, प्रिडिक्ट द आंसर. डू नॉट लीव एनी आंसर ब्लैंक. ओके, डू नॉट लीव द आंसर शीट ब्लैंक. लग रहा है कि सेकंड का आंसर नहीं पता, डोंट लीव इट ब्लैंक, ट्राई टू प्रिडिक्ट इट. दैट विल हेल्प यू अलॉट. हो सकता है वो प्रिडिक्टेड आंसर करेक्ट हो, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है. सो जब आप ऑलरेडी रीड ही कर रहे हो ना ऑप्शंस, तब भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है. बट एमसीक्यूज के केसेस में नहीं, पार्ट 1 एंड पार्ट 4 के केस में ज्यादा हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही करने हैं. जब भी आपको वो टाइम मिलता है पढ़ने का, फर्स्टली यू विल गो थ्रू ओनली द क्वेश्चंस. लेट्स से 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सो आप बस 6 स्टेटमेंट्स पहले देखोगे. वो जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है, आपके वो 6 स्टेटमेंट्स देखने के बाद टाइम बचता है, फिर आपने जल्दी से ऑप्शंस देखने शुरू कर लेने और अंडरलाइन या सर्कल करने. सो that's what you need to do for multiple choice questions. I'll definitely attach the link in the description as well, जिसमें MCQs मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करे, मैचअप्स डिटेल में एक्सप्लेन करे. जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उसको फॉलो करना, पर जो मैं बता रही हूँ वही मेथड मैं फॉलो करती हूँ. नाउ कमिंग टू मैचअप्स. देखो, मैचअप्स करने का एक सिंपल सा फंडा है. इफ यू आर डूइंग मैचअप्स इन अ ट्रेडिशनल वे, यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग. मैं मैचअप्स कैसे करती हूँ? देखो, मैचअप्स में यूजुअली वी हैव पार्ट ए, वी हैव पार्ट बी. लेट्स से मेरे पास पार्ट ए में पर्सन्स के नेम है, और वो पर्सन्स के नेम क्या है? जियो, ठीक है, थॉमस, टॉम, ठीक है, जूली, ठीक है, प्रोफेसर विलियम. अब these are the names. They have given us 6 names here. Sorry, 5 names. So 1, 2, 3, 4, 5. And they are asking us to match the designations. पार्ट बी में जो मेन ऑप्शंस दिए उन्होंने डेजिग्नेशन दिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज बता दी है. लेट्स से, सो दे आर टेलिंग यू ड्यूटीज. अब ड्यूटीज बताई है तो कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करा है. फाइनेंशियल रोल, ठीक है, हैंडलिंग रिक्रूटमेंट्स. बहुत बार सिनोनिम्स यूज करते हैं. उन्होंने रिक्रूटमेंट्स नहीं बोला होगा, उन्होंने बोला होगा दे टेक केयर ऑफ हायरिंग, ठीक है. सो हायरिंग बोल दिया, रिक्रूटमेंट भी वही चीज है. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. अब मैं क्या करूंगी? रिक्रूटमेंट्स अंडरलाइन कर दूंगी, फाइनेंशियल अंडरलाइन कर दूंगी. ये मेरे मेजर कीवर्ड्स हैं. सो व्हाट इज फाइनेंशियल? एडजेक्टिव है. हैंडलिंग रिक्रूटमेंट्स क्या है? नाउन है. आई जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है. सो ऐसे मैं सब अंडरलाइन कर लूंगी. मैंने दोनों पार्ट्स पढ़ लिए, पार्ट ए पार्ट बी दोनों जल्दी से पढ़ लिए. बट अब व्हाट डू आई नीड टू डू हियर? मैंने जब व्हेन द ऑडियो इज बीइंग प्लेड, दैट टाइम आई विल नॉट मार्क इट. ओके, मैं मैच करना नहीं शुरू कर दूंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी. मैंने जल्दी से लिख लेना. उन्होंने जियो के बारे में बात करी है, और जियो के लिए उन्होंने बोला है टीचिंग. सो टीचिंग इंग्लिश, ठीक है. थॉमस के लिए बोला है अर्लियर ही वाज टेकिंग केयर ऑफ द एडमिन पार्ट, बट नाउ ही हैज स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ अकाउंटेंसी वर्क, ठीक है. सो अब मुझे पता है आई हैव रिटन द कीवर्ड्स. मैं सब नहीं लिखूंगी, आई जस्ट राइट द मेजर कीवर्ड्स. जो मेरा मेजर नाउन या एडजेक्टिव है वो लिख दूंगी, या नाउन या वर्ब है वो लिखूंगी. अब व्हेन आई विल बी राइटिंग दिस, मुझे बेसिक आइडिया हो गया. फिर मैं इसे एंड में मैच करूंगी. अब मैचअप्स वाले पार्ट में आपको जो 5 मिनट्स 30 मिनट्स चेक, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, 30 सेकेंड्स चेकिंग के लिए मिलते हैं. वो चेकिंग वाले टाइम पे आप इसको मैच करोगे. That's what you'll do. So matchups हमेशा इसी तरीके से करने हैं, ठीक है. Coming to the last question type, हमारे होते हैं maps. Maps में there are times they have given you various information,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ट्राई टू प्रिडिक्ट एज वेल। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बिगनिंग में बोला, यू शुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ, लेट्स से मेरे पास आई हैव दिस मैप एंड दे हैव गिवन द डायरेक्शन, ठीक है, दे हैव गिवन मी द डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बट यहाँ उन्होंने कोई मेन एंट्रेंस पॉइंट नहीं बताया, दे हैव जस्ट गिवन द डायरेक्शन बट मेन एंट्रेंस पॉइंट कोई नहीं बताया। सो व्हाट विल आई डू, मुझे पता है जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री यू विल सी अ बिल्डिंग, द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज दिस। अब उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा, लेट्स से, सो मुझे अलग अलग चीजें दिखेंगी, लेट्स से यहाँ पे आई कैन सी सम ट्रीज, ठीक है, हियर देयर इज अ बिल्डिंग, अ लार्ज बिल्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है अलग अलग पार्ट्स मुझे दिख रहे हैं, किसी बिल्डिंग का उन्होंने नेम, जो भी उन्होंने नेम्स दिए हुए हैं वो नेम जरूर ध्यान रखना, लाइब्रेरी, किसी स्ट्रीट का नेम दिया हुआ है तो स्ट्रीट का नेम जरूर लिखना, हडसन स्ट्रीट, जिससे कि आपने लोकेट आंसर वैसे ही करने विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीट्स। अब उन्होंने बोला फर्स्टली टेक द फर्स्ट एग्जिट फ्रॉम द Hudson Street. Okay, so take the first exit on the right from the Hudson Street. You'll see a library. ठीक है, you'll see a library facing you, or there will be a library facing you. Passing the library, you'll see the main building, and that's the community hall. So आपने क्या करना है, यहाँ पे whatever they say आप लिख लो, बाद में क्वेश्चन मैच कर लेना, बट आप लिख लो बस जल्दी से कि ए बी सी डी ई एफ क्या है, बट उन्होंने आपको खाली ए बी सी डी का आंसर लिखने के लिए बोला है। देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्टर्स गिवन, कम्युनिटी सेंटर तो है ही नहीं वहां पे क्वेश्चन में, बट उन्होंने वो भी बताया, तो आप वो भी लिख लो, जो भी वो ऑप्शंस बता रहे हैं, जो भी वो नेम्स बता रहे हैं, आप सारे लिख लो, बाद में जल्दी से मैच कर लो। सो मैचअप्स में एंड मैप्स में व्हाट विल बी डूइंग, विल एक्चुअली मैच, ठीक है, विल जस्ट मैच। सो और एंड में चेक भी करेंगे, this will help you a lot. At times direction दी हुई है, that's like this, पर अगर entrance दी हुई है, entry point main बताया हुआ, that will be easy for you to do, क्योंकि usually जब entrance point बताया होता है they just start from entrance point, so just listen carefully। यहाँ पे major कुछ words use होते हैं जो कि मैंने अपने telegram channel पे भी share करे थे, I'll be sharing those words again, जैसे कि I have written these words for you as well, थ्रू, अपसाइड डाउन या अलोंग, अलोंग मतलब होता है एक साथ उसी पाथ पे, ठीक है, या अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, बिनेथ, अराउंड, ठीक है, ऑपोजिट, डायगनली। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पे ये मेनली मैप में आपके बहुत ज्यादा यूज होता है, किसी पर्टिकुलर डायग्राम में। एट टाइम्स आपके पास लिसनिंग में डायग्राम आ जाता है तो वहां पे ये मेन वर्ड्स यूज होते हैं, और मैप में हमारी प्रेपोजिशंस यूज होती है, ऑपोजिट टू, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। सो व्हेन यू विल गो स्ट्रेट, टेक द फर्स्ट एग्जिट फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यू विल सी द मेन एरिया फॉर द पब्लिक सर्विसेज। So the area adjacent to community center is for public services. Adjacent साथ वाला public services. Besides पीछे वाला. Opposite बीच में कुछ है और opposite. So that's what we need to take care of. ठीक है? So guys mainly जो अभी listening में मैंने बोला, we need to take care of all these points. ठीक है? अब मैंने आपको हर एक चीज clearly explain कर दी है. Just focus on these और आप इसके अकॉर्डिंग just do 5 listenings. I can assure you 8+ band आपके किसी भी listening में आ जाएंगे. Only follow these tricks and try to predict your answers. जब भी आप keywords underline कर रहे हो, please predict your answer. It will help you a lot. Do not leave any answer blank. ठीक है, अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड आपको किस पार्ट में अभी भी प्रॉब्लम आती है। आई ट्राई टू सॉल्व दैट पार्ट फॉर यू एंड विल डेफिनेटली वर्क आउट योर प्रॉब्लम्स टुगेदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन टुडे एंड आई विल सी यू अगेन विद द न्यू सेशन ऑफ माइन। बाय, टेक केयर एवरीवन।